Hi, I'm Sanvi. I'm studying in IIT Bombay in my first year. I'm just done with my first year. And now that your JEE Advanced is approaching, I wanted to talk about something very important. And that is handling pressure on the day of JEE Advanced. It is very natural for you to feel that it is the biggest moment of your life. Because for the last, at least 2 to 4 years, you have prepared for this very day. And maybe it's starting to hit a little right now. Okay, you're gonna write the paper tomorrow. You're gonna write the paper day after tomorrow. So I'll tell you one important thing about JEE Advanced. It appears to be a very scary thing. It appears to be the big thing that you have prepared for. But at the end of the day, it is just another exam, right? And you've given so many exams so far, right? You've given your mains one, you've given mains two, you've probably given CET, BITSAT, lot of exams. And at the end of the day, JEE Advanced is just that. It is an exam. Metaphorically speaking, JEE Advanced is exactly like a mountain. It is the big mountain that you have prepared to climb for at least the last 2 to 4 years. And that's the thing about mountains. You don't have to climb the mountain all at once. You have to climb it in small steps. And that's why you don't slip over the entire mountain. You slip over small stones and fall. So to make your day as awesome as possible, to give your best today, you just have to take care of the small stones that come in your way. The first one is knowing what to do before the paper and in the gap that you have between the two papers. Both those time slots are very critical. Firstly, before the paper, reach the center in time. Don't leave in time. I hope you know by now where your center is. Send your parents to that place. Have them look at it little bit. देखो घर से कितना टाइम लगता है वहाँ जाने के लिए. When you're going there as well, make sure that you don't look outside too much. Just close your eyes, sit still, rest for a while. When once you reach the center, as calmly as you can, avoid standing in queues. जितना भी तुम्हारे पास सामान है, try to just keep that in one transparent folder. Like I think you need your admit card, you need a Xerox copy of your Aadhaar card. I think you need passport size pictures as well. So whatever it is, keep it in a transparent folder, carry it and your pens obviously, and carry it to the examination door. Most times they let you keep the folder outside and then just go in with whatever your material is. This avoids standing in queue for the locker room and that should calm you down a little bit. Once you're inside the center, make sure that before the paper you have roughly 15-20 minutes where you're just sitting in front of the screen. So at that time, try not to get your thoughts towards anything. Like keep your mind blank, keep it calm. Try to tell yourself that this is just another test. Like मैंने खुद के लिए किया था. When I was sitting in the exam center, मुझे एक moment of panic आया था. तो उस टाइम पे I just told myself यार ये तो बस mock test है ना इसके बाद असली पेपर है. अभी तो बस mock test देना है. So I can relax, I can give it आराम से. So ऐसे just convince your brain that it has to be in a very calm mode. तुम जितना अपने आप को शांत रखोगे उतना तुम अपना बेस्ट दे पाओगे. देन वंस द पेपर स्टार्ट्स दिस इज वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट. सो जेई एडवांस में हमेशा पेपर का जो पैटर्न होता है वो तुम्हें पेपर में जाके पता चलता है कि क्या पैटर्न होने वाला है. तो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर ब्लैंक बुकलेट जस्ट राइट डाउन कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन है बिकॉज वो इंस्ट्रक्शन पेज पे होते हैं. तो जस्ट राइट डाउन ओके यू हैव 5 single correct options with +4 - 1. Then you have 3 multi-correct questions +4 - 2. Then you have maybe integer answers or you have numeric answers. Sometimes they have negative marking, sometimes they don't. So ये जो है तुम्हारे फर्स्ट पेज पे लिख लो कि पेपर का पैटर्न क्या है. एंड देन थोड़ा सा take 2 to 5 minutes and get a strategy in your mind. Like I'm sure you have some sort of subject order that you follow. Maybe you follow physics, chemistry, math, you follow some other order. So उसमें आके you decide now कि ठीक है मैं single correct पहले करूंगा then multi correct then maybe the integer ones. So once you write this down, decide in your head and then start the paper. This will give you some sort of a trajectory to traverse through the paper and it will avoid confusion during the paper कि अब कौन सा section में आगे करूँ. And I feel investing these 2 to 5 minutes is a better option than beach paper में confusion होना. The next thing is during your first paper. So बहुत बार ऐसा होता है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं होता है. And I'm sure you must have felt this in your mock as well. जब भी 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तुम स्किप करते हो ना इसके पीछे एक या फिर नहीं होता है तो थोड़ा प्रेशर आता है. बट खुद को बस यही बोलना कि अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो बहुत बच्चे होंगे जिनसे नहीं हो रहा. राइट क्योंकि तुम एक सर्टेन लेवल पे हो.
ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है और ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आता है। तो अगर तुमसे एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बहुत बच्चे होंगे जिनसे नहीं हो रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज गोइंग टू बी रिलेटिव, एंड इवन बियॉन्ड दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। सो अगर 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 7 क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है यार, पूरा मतलब यू हैव रफली 180 मार्क्स पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत क्वेश्चन है, और तुम जितने कर पा रहे हो उतने करते जाओ। Whatever is your strategy of attempting the paper, most times it's a round strategy. I think that is what most teachers recommend, or that is what most students follow. So make sure कि जो भी तुम्हारे first easy question हो रहे हैं वो तुम कर पाओ, because JEE Advanced is very notoriously famous for bringing like very different and challenging questions, and बच्चे उसमें फंस जाते हैं. Like you look at a new question, it's very interesting, so you want to try it, but you have to control yourself then, right? पूरा पेपर देखने के बाद जब तुम्हें आइडिया आ जाता है कि मैथ्स टफ है, फिजिक्स थोड़ा इजियर है, केमिस्ट्री लेंदी है, फिर तुम डिसीजन ले सकते हो. दिस इज पार्ट ऑफ द राउंड स्ट्रेटजी दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, सो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यू नो दिस. बट स्पेशली इन जेई एडवांस कीप दिस इन माइंड. क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें बस फंसाने के लिए बनाए होंगे. कुछ कुछ क्वेश्चन है जिनको मतलब सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो additionally a lot of things, or then it's something that's taught at a very higher level जो तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, like simple way of approaching the question. तो होता है ऐसा कि फर्स्ट टाइम में वो क्वेश्चन नहीं बनता है, तो यू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, बट रिमेंबर दैट द स्किप बटन इज योर बेस्ट फ्रेंड. तुम स्किप करते जाओगे, वो क्वेश्चन ढूंढते जाओ जो तुम कर पाते हो. तुम जितने जल्दी वो रैप करोगे उतनी जल्दी यू विल गेन कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप. स्टे कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट. ट्राई टू बैक योर सेल्फ अप. अगर कभी भी डाउट आ रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ask yourself, have I learned this somewhere before? Have I done a question like this before? Or is this some concept that I'm confident that I understand? So, to the best of your abilities, keep backing yourself up. Not in the wrong way. अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सही है सही है सही है. But knowing that fine line, I think is where your marks come in. कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम अपने आप को किस वे में बैक करते हो जो तुम्हारे लिए सही होता है. नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ डाउट. बहुत ज़्यादा होता है जेई एडवांस के टाइम पे कि तुम्हें सेल्फ डाउट आता है. तुम्हें लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, ये बहुत टफ है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, या ये पेपर क्या है, बहुत खतरनाक लग रहा है, वॉट एवर. बट देखो पेपर ही है, उन्होंने बनाया कुछ सोच समझ के ही है ना. जो भी पेपर बना रहा है उसको एडमिशन देने तो है ना कॉलेज में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत इम्पॉसिबल कुछ बनाया होगा. हर पेपर में कुछ ना कुछ होते हैं, इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन. यू लुक फॉर योर क्वेश्चन, एंड अगर मतलब कैसा भी पेपर है, बहुत इजी पेपर है, लेंदी पेपर है, टफ पेपर है, टेक इट ऑब्जेक्टिवली. स्ट्रेस नहीं लेना कि यार मुझे तो आता ही नहीं है टफ पेपर करना, यार लेंदी होता तो मुझसे होता ही नहीं पेपर. नहीं, ओके, ऐसा टाइप का पेपर है, मैं इसको ऐसे हैंडल करूंगा. टेक इट वेरी ऑब्जेक्टिवली, डोंट थिंक टू मच. तुम सोचने जाओगे तो यार एक एक मार्क पे बहुत रैंक्स होती है, बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हारा कॉलेज चेंज होता है, तुम्हारा ब्रांच चेंज होता है, बट तुम अगर ये कल सोचोगे ना तो फिर पेपर नहीं मिलना तुमसे. In a positive way, all I'm saying is just give your best tomorrow. That is the simplest way to tread on this. तुम जो भी करोगे अपने दिल से करना, दिमाग से करना. Now we come to the last part of your first paper, right? तुम ये सब करोगे तो तुम at some point तो तुम पहुंच ही जाओगे 2.5 hours पे. अभी हाफ एन आवर जब बचता है ना पेपर के लिए, तब थोड़ा स्ट्रेस आता है. हाँ, थ्रू द पेपर याद रखना कि तुम्हारे पास एक क्लॉक भी है, 3 घंटे है तुम्हारे पास बस एक पेपर करने के लिए. तो थोड़ा ध्यान देना क्लॉक पे. आफ्टर यू फिनिश सर्टेन सेक्शन, लाइक जैसे हमने डिस्कस किया, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन का सेक्शन होगा, एमसीक्यू का होगा, एक पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, तो ये तुम्हारे सारे मार्कर्स होते हैं. इन पे थोड़ा थोड़ा टाइम चेक करते जाओ कि ओके कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है. एंड रफली 2 hours पे तुम्हें पूरा पेपर एटलीस्ट वंस हो जाना चाहिए. आइडियली 1.5 hour पे, फिर 1.5 to 2 hours के बीच में तुम्हारा पूरा पेपर एक बार देखे हो जाना चाहिए. फिर तुम लास्ट 1 hour में ऑप्टिमाइज करना कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन है जो तुम्हारे टाइप के क्वेश्चन है जो तुमसे बनते हैं, उस पर फोकस करना. उस पर तुम जाके थोड़ा टाइम दो, उस पर सोचो. यू कैन स्पेंड अबाउट 5-7 minutes ऑन अ क्वेश्चन इफ यू फील दैट यू कैन कन्वर्ट इट नाउ. तो ये तुम्हारा जो लास्ट 1 hour है ना, इसमें तुम्हें क्लच करना है. तुम अपने आप को एक चाहिए तो ब्रेक ले लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना 2 hour मार्क पे, एंड बस खुद को बोलना कि अब गिव अप नहीं करना है. लास्ट के 30 मिनट्स बचे हो, 30 सेकंड बचे हो, 3 सेकंड बचे हो, तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो. बट बस यही करना कि हैफेजर्डली मार्क करके मत आना. मे बी यू कन्विंस योरसेल्फ इन द लास्ट 30 सेकंड कि यार ये सही है ये गलत है, उसके हिसाब से डिसीजन तुम ले सकते हो.
बट बस क्वेश्चन पढ़ के कुछ मार्क करने के लिए मार्क मत करना। बहुत टेम्पटेशन होता है लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 5 मिनट्स में कि कुछ तो मार्क करूँ, कुछ तो मार्क करूँ। बट यू हैव टू रियलाइज दैट दीज आर योर प्रेशियस मिनट्स। अगर तुम्हें कुछ भी चेंज करना है पेपर में तो तुम अब कर सकते हो। तो तुम्हें अगर कुछ भी चेक करना है तो चेक कर लो पेपर पूरा अच्छे से। तुम्हें कुछ भी चेंज करना है तो अभी जाके चेंज कर लो लास्ट 1 आवर में, लास्ट हाफ एन आवर में। बट रिमेंबर दैट दिस इज द वन टाइम दैट यू हैव टू पुश। डीप ब्रेथ लो, पानी पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, एक मिनट के लिए यू कैन कीप योर हेड डाउन एंड देन जस्ट गो। बिल्कुल मत रुकना टिल यू फिनिश दैट लास्ट पेपर, टिल सबमिट बटन ना आ जाए, सबमिट का स्क्रीन ना आ जाए। बस गिव योर बेस्ट। गिव अप नहीं करना है एट एनी पॉइंट ऑफ द पेपर। बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। जस्ट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड दिस। यू स्टार्टेड दिस बिकॉज यू वांट टू गेट समवेयर, राइट? एंड ऐसे मिडल ऑफ द माउंटेन क्लाइंब छोड़ना अच्छा नहीं होता। द व्यू एट द टॉप इज वर्थ इट ऑलवेज। जब तुम्हारा पेपर का ब्रेक होगा, राइट, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम अगेन। तुम पेपर से बाहर आओगे तो प्लीज किसी के साथ कुछ भी डिस्कस मत करना। डोंट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द पेपर, एनीथिंग अबाउट द आंसर्स। कुछ भी नहीं। तुम्हें टफ लगा है, इजी लग रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। पेपर हो गया, खत्म। लीव द पेपर बिहाइंड। दिस इज अ न्यू न्यू पेज फॉर यू। गो हैव लंच जो तुमने पैक करके लाया, तुम बाहर खा रहे हो, तुम कार में हो, जस्ट गेट सम गुड रेस्ट, ड्रिंक वाटर। अच्छे से खुद के ब्रेन को रिलैक्स करना। ट्राई टू गेट अ पावर नैप ऑफ मे बी 30 मिनट्स, कार में हो, होटल बुक किया हो तो वैसे। आई वुड सजेस्ट दैट यू मेडिटेट अगेन। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद करती थी बिफोर एवरी पेपर। तो तुम जो भी मेडिटेशन करते हो, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, वो करना अच्छे से। उसके बाद अगेन रीच इन टाइम फॉर द सेकंड पेपर। फिर से चेकिंग होती है, कुछ कुछ होता है उसके बाद। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट पेपर के बेसिस पे अंडर कॉन्फिडेंस फील मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस फील मत करना। ये याद रखना कि पूरा एक 180 मार्क्स का पेपर भी बचा है। तुम्हारे पास और 3 घंटे है। तुमने जो भी किया है फर्स्ट पेपर में तुम सुधार सकते हो, और तुमने जो भी किया है फर्स्ट पेपर में तो उसको बिगाड़ भी सकते हो। तो योर सेकंड पेपर इज योर नेक्स्ट स्टेप। इट इज योर हाफ पार्ट ऑफ द माउंटेन दैट यू आर लेफ्ट टू क्लाइम अभी भी। तो एक बहुत न्यूट्रल फीलिंग रखना अपने बारे में। जो भी हुआ पेपर में हो गया, अच्छा गया हो बुरा गया हो, पेपर हो गया। यू हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। कुछ भी फीलिंग हो, जैसे मुझे बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, उसको न्यूट्रलाइज करो अपने आप को। एक बेसिस पे लाओ कि यार ठीक है, ये हो गया, बस नेक्स्ट पार्ट की बारी, बस अभी आधा हो गया, फिर यूर फ्री। तो जब भी तुम सेकंड पेपर देने जाओगे तो डोंट कैरी एनी रिग्रेट्स, एनी टेंशन, एनी स्ट्रेस फ्रॉम योर फर्स्ट पेपर। दिस इज अ न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू, न्यू स्टार्ट। सेकंड पेपर में भी ये सारी चीजें रेप्लिकेट करना, अच्छे से अपने आप को पुश करना। एंड अभी ये जो सेकंड पेपर का लास्ट हाफ 1 आवर होता है ना, 1 आवर 1.5 आवर, इसमें बहुत बच्चे गिव अप करते हैं। आई मीन आई कैन टेल यू दिस कि मेरे जब 2 आवर्स हो गए थे तो आई टेक अ ब्रेक। तो मैंने बस गलती से आसपास देखा था। A lot of people in my segment of the exam hall had kept their head down and they've given up क्योंकि पेपर टफ आया था। तो कुछ भी हो सकता है यार। नेगेटिव आंसर्स आए थे हमारे पेपर में 2025 के जेई एडवांस के पेपर में। अगर तुम्हें सही आया है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा आंसर 100% सही है, तुम चेक करके डाल रहे हो तो डाल दो। अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखा नहीं है कि आंसर नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, डेसिमल हो सकता है, जनरली वो मेंशन करता है डेसिमल और इंटीजर का तो एटलीस्ट। तो वो तुम जो भी तुम्हें साइंटिफिकली करेक्ट लग रहा हो अपने तरफ से डाल दो। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम यही होता है, बच्चे कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये तो नहीं होगा अलाउड, ये तो नहीं होगा। बट जो करेक्ट है वो करेक्ट तुम डालो, अच्छे से अटेम्प्ट करना। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट गिव अप यार एट ऑल। भाई तुमने इतनी मेहनत करी है, कोई छीन के दिखाए तुमसे ये, है ना? इट इज योर पेपर यार। जस्ट गो एंड गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट। अभी व्हाट टू डू इन दीज लास्ट 2 डेज यार? ज्यादा करने के लिए कुछ होता नहीं है, मतलब अभी तो हो गया है सब कुछ ऑलमोस्ट। तुम ऐसे नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ाई करोगे। डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ इन दीज लास्ट 1 और 2 डेज। तुम्हारी जो भी मिस्टेक बुक होगी उसको रिव्यू करना, वॉट एवर इज योर पेपर स्ट्रैटेजी उसको रिवाइज करना। एक तुम कर सकते हो चीज कि टाइप ऑफ पेपर्स होते हैं, जैसे टफ पेपर को हैंडल कैसे करना है, लेंदी पेपर को हैंडल कैसे करना है, इजी पेपर हो जो कैलकुलेटिव हो तो उसको हैंडल कैसे करना है। ये सारी चीजें तुम अपने आप से एक ब्रेन स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो दिमाग में कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन ईच। सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज रिव्यू योर मिस्टेक बुक। उसमें भी ये नहीं देखना कि यार मैं ये मिस्टेक करता हूँ, यार मैं ये मिस्टेक करता हूँ। ओके, आई डू दीज मिस्टेक्स, आई हैव टू वॉच आउट फॉर देम। ऐसा हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक्स हो तो मुझे रीचेक कर दो। जो भी है ऑब्जेक्टिवली देखो, स्ट्रेटेजिकली देखो, इससे इमोशन अटैच मत करो। एंड वन स्ट्रॉन्ग सजेशन वुड बी कि जो भी तुमने बहुत दिनों से देखा नहीं है उसको मत देखो। मतलब
बहुत ज्यादा एंजाइटी आती है अगर तुम वो देखते हो पेपर से एक दिन पहले, तुम्हें लगता है शिट यार मुझे तो ये याद ही नहीं था। तो आई वुड से अवॉइड लुकिंग एट थिंग्स दैट यू हैवंट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम रिलैक्स करो, अपने आप को काम रखो, उससे ही तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाला है। वन लास्ट पर्सनल नोट वुड बी दिस कि मेरे लिए हुआ था ये, जस्ट बिफोर माई जेई एडवांस, वन नाइट बिफोर आई स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ नोवेयर। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया कि क्या करूंगी। बिकॉज देखो जब भी पहले स्ट्रेस आता था ना, आई वुड टेल माई सेल्फ कि ठीक है अभी तो पढ़ लेती हूँ, पढ़ने से ही कुछ होने वाला है। बट when it's one night before and it's your paper is tomorrow, तो वो लगता है यार have I done enough? क्या मैंने जो किया है वो enough है? Will I get in? Is it, am I good enough? But ये सारी चीजें एक दिन पहले सोचने का कुछ पॉइंट ही नहीं है। समझ रहे हो? एंड whether you think you are good enough, whether you think you have done enough is not relevant at all. पेपर को नहीं पता है कि तुम कितनी मेहनत करके आए हो, विच इज फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट बोथ। तो बस अपने आप को कन्विंस करो कि तुमने जो भी किया है अपना बेस्ट किया है। तुम जो भी करोगे अपना बेस्ट करोगे उस दिन जाके वहाँ पेपर है। बस ये दोनों बातें अगर दिमाग में रख के चलोगे ना, तो अच्छा ही होना है। एंड आई टेल यू दिस, मैं अभी पहलगाम में बैठी हूँ, राइट? 1 ईयर अगो पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ था जस्ट बिफोर आवर जेई एडवांस। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। बट अगर तुम मुझे उस टाइम पे बता देना कि 1 साल बाद मैं ये वीडियो कर रही होती, आईआईटी बॉम्बे में होती, पहलगाम में बैठ के ये वीडियो कर रही होती, तो आई वुड हैव नॉट बिलीव्ड इट। सो माय पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज दैट आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स जिनका आईआईटी हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, जो अभी बहुत से कॉलेजेस में है, बिट्स में है, आईआईएससी में है, ट्रिपल आईटी में है, एनआईटीज में है। ऑल ऑफ देम आर हैप्पी दैट दे गेव देयर बेस्ट एंड दे आर इन गुड प्लेसेस। तो जो भी होना है अच्छा होना है, जस्ट गिव योर बेस्ट। बस एक चीज बोलूंगी, बिफोर द पेपर, बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू नो गो लीव फॉर द पेपर फ्रॉम योर हाउस, जस्ट जो भी तुम्हारी मेहनत है, जो भी तुमने किया है, जस्ट मे बी डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम इट। तुम उस चीज को एक हायर पावर को जाके डेडिकेट कर दो। मैंने वही किया था, आई वेंट टू गॉड एंड आई सेड यार दिस इज इट, मैंने जितना किया है ये मेरी मेहनत है। तो इसके मतलब इसके बाद इसके आगे मेरा कुछ नहीं है। अब वहां जाके जो मैं कर पाऊंगी अपना बेस्ट मैं करूंगी। इसके आगे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसके आगे मेरी कुछ बिलीव नहीं है, इसके आगे मेरी कुछ शॉर्ट कमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको यूज करो, जस्ट गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट। दिस इज ऑलरेडी द 15th टाइम आई एम सेइंग दिस, बट दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। whatever you have learned, whatever you have understood, whatever you can do everything in the paper, whatever you can do. Honestly, with your, matlab, with your 100%, your heart, your brain, your mind, just give your best and come back. At the end of the day, बस तुम्हें एक satisfaction का feeling आना चाहिए कि तुमने जो भी किया अपना बेस्ट किया। उसके आगे रिजल्ट देख लेंगे यार, मतलब वो आते रहते हैं। Do your best. If there's anything I can do, let me know. And all the very best. Wish you good luck for the paper.